Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our new chapter of class 7, which is chapter number 10 about respiration in organisms. Okay, let's start the chapter. See, respiration is a metabolic process that happens in all organisms. Breathing and respiration are necessary for a living organism. Breathing is a physical process that involves the inhaling and exhaling of air through the lungs. This exchange of gas is essential for respiration. In simple words, respiration is defined as the biochemical process wherein the living cells of an organism produce energy by inducing together glucose and oxygen, resulting in the liberation of carbon dioxide. Okay, so what is respiration, student? Respiration is a metabolic process. ये एक living process है, एक metabolic process है, जिसके through सभी living organism अपनी body के अंदर उस food से जो कि उन्होंने consume किया था, उसको oxidize करके energy produce करते हैं. Such an organism, such a life-supporting process of the human beings or the living organism is considered to be respiration. Okay, so breathing and respiration ये दोनों ही काफी necessary है एक living organism के लिए. Breathing एक physical process है जहाँ पे आप अपने lungs के through air को inhale करते हो simply and exhale करते हो. That is a breathing. Okay, and ये जो exchange of gas होता है ये काफी essential है respiration process के लिए. यानी कि सिंपल वर्जन कह सकते हैं रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करके, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लिबरेशन होता है विच इज बीइंग एक्सहेल्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, चलो नाउ सी, now they have given you that why do living organisms respire. अब living organisms respire क्यों करते हैं? Okay, so all living organisms respire as need and use energy that is formed through this process to assist with the process in order for organisms to survive and reproduce. Oxygen and carbon dioxide are the main gases involved in respiration. So सभी living organism को respire करने की need होती है. Cells जो हैं वो क्या करते हैं, उस energy को जो उन्हें required होती है ओके उसको यूज करते हैं, एंड वो एनर्जी कब बनती है, इसी प्रोसेस के थ्रू बनती है विच इज नोन एज रेस्पिरेशन. ठीक है, इस एनर्जी के थ्रू बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइफ प्रोसेस चलते हैं उनको असिस्ट किया जाता है विद द एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये आपकी दो मेन गैसेस होती हैं जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं. ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट आर द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है ब्रीद इन करना ऑक्सीजन को, एंड द लास्ट स्टेप इज ब्रीद आउट करना, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एंड जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो सिमिलर होता है टू कंबशन और बर्निंग इन मेनी एस्पेक्ट, एंड द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन आर गिवन बिलो. ओके, सो रेस्पिरेशन प्रोसेस काफी सारे एस्पेक्ट्स में कंबशन या जो बर्निंग प्रोसेस होता है उससे सिमिलर होता है. कैसे होता है, एंड द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू प्रोसेस दे हैव बीन डिस्कस्ड टू अस. So difference between combustion and respiration. Combustion एक fast process है, respiration is a slow process. Combustion में high temperature required है, respiration आपके body temperature पे चलता है. Combustion आपका कहीं भी हो सकता है in the presence of oxygen and combustible substances. Basically combustion के लिए आपको oxygen and combustible substance की presence चाहिए. There the process of combustion could take place. But respiration केवल और केवल living cells के अंदर होता है. Combustion एक physical process है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और इसको एंजाइम्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. कंबशन में एनर्जी रिलीज होती है सिंगल स्टेप में इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, लेकिन रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टेप बाय स्टेप रिलीज होती है एंड हमारे केमिकल मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर होती है विच इज नोन एज ATP, एंड द ATP इज नोन एज, आई विल राइट ओवर हियर, एडिनोसाइन ट्राई phosphate. This is known as ATP. Okay, chalo. Now next we come to respiration is carried of two types. अब respiration two types का होता है, that is external respiration or breathing, and the second is internal respiration or cellular respiration. First of all we are going to talk about external respiration which is also known as breathing. So ये आपका प्रोसेस है ब्रीदिंग का जिसमें आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं. एंड इस प्रोसेस में जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, इट इज ब्रॉट अबाउट बाय ब्रीदिंग मैकेनिज्म डिफरेंटली इन डिफरेंट एनिमल्स. यानी कि ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म के थ्रू कैरी आउट किया जाता है डिफरेंट
तरीके से डिफरेंट एनिमल्स में, ठीक है। इन हायर एनिमल्स, जो हायर एनिमल्स होते हैं उसमें ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ये लंग्स के अंदर होता है, ऑक्सीजन को लंग्स में एब्जॉर्ब किया जाता है एंड ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सो दैट ये हर एक लिविंग सेल तक रीच करे ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नाउ इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ब्लड combines with the food present in the form of glucose in the cells to release energy। अब जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो किसके साथ? उस फूड के साथ जो कि आपने बॉडी के अंदर इनटेक किया था एंड वो सेल्स के अंदर वेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के साथ कंबाइन होती है एनर्जी रिलीज करने के लिए। एंड ये जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, वो किसके अंदर होता है? इट टेक्स प्लेस ओनली विद द हेल्प ऑफ सेवरल केमिकल रिएक्शंस विच इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स। बहुत सारे सेवरल केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको एंजाइम्स कैटेलाइज करते हैं, तब जाके ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारी बॉडी के अंदर चलता है एंड ये रेस्पिरेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितने टाइप्स का रेस्पिरेशन है? एज आई टोल्ड यू देयर इज 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नंबर 1 इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन किया जाता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज के बीच में जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है एंड तब जाके एनर्जी रिलीज करी जाती है इन अ वेरी हाई अमाउंट। ओके, ये आपका मेन सोर्स है एनर्जी का फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स एंड जो प्लांट्स ऑक्सीजन यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, दोज आर नोन एज एरोब्स। ओके, now the equation is what? C6H12O6 which is glucose। glucose में ऑक्सीजन कंबाइन होगी एंड तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। दिस इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, चलो नाउ all the organisms that operate energy by aerobic respiration cannot live without oxygen। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू चाहिए होती है वो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी फूड से विच दे ईट। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है बिकॉज यहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन। Now next we come to anaerobic respiration। Anaerobic respiration जो है just it is opposite of aerobic respiration because it occurs in the absence of oxygen। जहाँ पे ऑक्सीजन absence होती है यानी कि प्रेजेंट नहीं है, absent है, वहाँ पे anaerobic respiration चलता है। ओके, इस प्रोसेस में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड मटेरियल का एंड इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। ओके, उसके साथ साथ कुछ और ऑर्गेनिक मैटर है लाइक सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब भी प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एनाएरोबिक जो ब्रेक डाउन होता है शुगर का इनटू ग्लूकोज, दैट अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, शुगर का ब्रेक डाउन होगा लेकिन एनाएरोबिकली, ओके, एंड तब जाके क्या फॉर्म होगा? अल्कोहल फॉर्म होगा, दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन। Anaerobic respiration यूजुअली माइक्रोऑर्गेनिजम्स में होता है लाइक ईस्ट, सम बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक वर्म्स। ओके, एंड जो एनिमल्स एंड प्लांट्स आपके सर्वाइव करते हैं एंड एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोज आर नोन एज anaerobic। ओके, सो नाउ द इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंटिंग anaerobic respiration दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड तब जाके बनेगा इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ओके, now they have given you the difference between the aerobic and anaerobic respiration। let's see it। so aerobic respiration आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, anaerobic respiration ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। एरोबिक में जो एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लेकिन एनाएरोबिक में जो एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो तो क्या होता है? आइदर इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में काफ़ी कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि ज़्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड anaerobic respiration occurs in the few organisms only like yeast, bacteria and some parasitic flatworms। okay, चलो now next we come to the topic that is human respiratory system। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लंग्स जो है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं एंड इनको हमारे एक्सटर्नल एयर के साथ कनेक्ट किया जाता है थ्रू नोज, नेजल पैसेजेस, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकियाज, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ओके, चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नोज के बारे में।
सो नोज क्या है, नोज आपका उसके अंदर क्या होता है, एक कपल होता है एक्सटीरियर नोस्ट्रल्स का, जिसको डिवाइड किया जाता है एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर के फ्रेमवर्क से, जिसको हम कहते हैं सेप्टम। सेप्टम क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि इवनली सेपरेट करता है राइट नोस्ट्रल को फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रल। ओके, चलो उसके बाद छोटे छोटे से हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो हमारे नोस्ट्रल्स की इनर लाइनिंग को कवर करते हैं एंड एक बॉडी के पहले लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करते हैं अगेंस्ट द फॉरेन पैथोजेंस। सो नेजल पैसेज में एयर को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, वार्म किया जाता है, मॉइस्ट किया जाता है बिफोर एंटरिंग द लंग्स। देन वी कम टू फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, द नेजल चैम्बर्स ओपन इनटू अ वाइड हॉलो स्पेस टर्म्ड एज फेरिंग्स। अब जो नेजल चैम्बर्स है वो आगे जाके बहुत वाइड हॉलो स्पेस में जाके ओपन होता है, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। ये एक कॉमन पाथ होता है एयर एंड फूड दोनों का। ओके, एंड ये कैसे करता है फंक्शन, बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द विंड पाइप। फूड पार्टिकल्स के एंट्री विंड पाइप में ना हो, इसको प्रिवेंट करके ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। एपिग्लॉटिस एक इलास्टिक कार्टिलेज है जो कि एक स्विच की तरह एक्ट करता है लेरिंग्स एंड एसोफेगस के बीच में, क्या करके, सो दैट जो एयर का पैसेज है वो एयर वे में हो, सो दैट वो लंग्स में जाए एंड फूड का पैसेज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही हो। नेक्स्ट वे कम टू लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या है, टू कार्टिलेजिनस कॉर्ड ले द फ्रेमवर्क फॉर द लेरिंग्स। दो कार्टिलेजिनस कॉर्ड होते हैं जिससे लेरिंग्स का फ्रेमवर्क बनाया जाता है। ये हमारे फेरिंग्स के जॉइनिंग पॉइंट पे सिचुएटेड होता है। फेरिंग्स एंड ट्रैकिया जहाँ पे जॉइन होता है वहाँ पे आपके लेरिंग्स होता है। इसको हम एडम्स एप्पल या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये वो पोर्शन है जो आपके जब आप फूड पार्टिकल्स को स्वेलो करते हो उस टाइम पे राइज हो जाता है एंड देन उसके बाद फॉल हो जाता है। ठीक है, यही है जिसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है, बिकॉज जैसे ही एयर इसके थ्रू पास होती है, इसमें जो मिडिल वाला पोर्शन है वो हॉलो होता है, एयर वहाँ पास होके साउंड प्रोड्यूस करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया को ही विंड पाइप भी कहा जाता है, जो कि आपके लेरिंग्स के नीचे से राइज करता है एंड नेक तक नीचे मूव डाउन। ओके, ट्रैकिया की जो वॉल्स हैं उसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो कि ट्रैकिया को हार्डनेस प्रोवाइड करती हैं एंड उसको मेंटेन करती हैं बाय कंप्लीटली एक्सपेंडिंग। ट्रैकिया आपका आगे चल के एक्सटेंड होता है, ओके, ब्रेस्ट बोन में जाके एंड वहाँ जाके स्प्लिट हो जाता है इनटू टू ब्रोंकाई, वन फॉर ईच लंग। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई। ब्रोंकिया क्या है, एज आई टोल्ड यू, ट्रैकिया आगे जाके दो ट्यूब्स में स्प्लिट होता है जिसको आप ब्रोंकाई कहते हैं एंड हर एक ब्रोंकाई हर एक लंग्स के अंदर एंटर करता है इंडिविजुअली। अब ब्रोंकाई आगे जाके सेकेंडरी, टर्जरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। ओके, फर्दर इनटू स्मॉल एयर, इसके बाद छोटे छोटे स्मॉल एयर सैक्स में डिवाइड होते हैं जिनको एल्विलॉय कहा जाता है। एल्विलॉय आपके छोटे छोटे सैक हैं एयर के विद थिन वॉल्स एंड सिंगल सेल्ड मैनर। ओके, यही है जो एक्सचेंज फैसिलिटेट करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का इनटू और अवे फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। नाउ नेक्स्ट वी कम टू लंग्स। लंग्स क्या है, लंग्स आपके मेन सेंटर है रेस्पिरेशन प्रोसेस का। ये हमारे चेस्ट के थोरैक्सिक कैविटी में होते हैं, नियर द बैकबोन एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट। ये आपके पेयर में होते हैं। ओके, लार्ज स्पॉन्जी ऑर्गन्स हैं, मेनली गैसेस के एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं बिटवीन द ब्लड एंड द एयर। एंड अगर हम कंपेयर करें लेफ्ट लंग के साथ तो राइट लंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारा बिग होता है, ओके, एंड हेवियर होता है। लंग्स में बहुत सारी थिन वॉल्ड टिनी एयर सैक हैं जिनको एल्विलॉय कहा जाता है। एल्विलॉय का जो सरफेस है वो फाइन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज के साथ कवर्ड है। जैसे आप ब्रीद इन करते हो, ये एल्विलॉय जो है फ्रेश एयर के साथ फिल्ड हो जाते हैं एंड इस एयर में से जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड कैपिलरीज में एंटर करती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आ जाती है इन द एयर। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। सो रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। अब कुछ स्टेप्स आपको गिवन है जिसमें पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है। नंबर 1, सबसे पहले टेकिंग एयर, एयर को टेक इन किया जाता है एंड एक्सपेल यानी कि बाहर टेक आउट किया जाता है लंग से, जिसको आप ब्रीदिंग प्रोसेस कहते हैं। सेकेंड स्टेप में गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन द एयर एंड द ब्लड, जो कि लंग्स के अंदर होता है, जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। थर्ड स्टेप में गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड एंड बॉडी सेल के बीच में, जिसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। एंड फोर्थ स्टेप में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है बॉडी सेल्स के अंदर, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। अब ह्यूमन बींग्स में ब्रीदिंग मैकेनिज्म कैसे चलता है। सो द एयर दैट यू ब्रीद इन एंड आउट ऑफ द लंग वेरीज इन इट्स प्रेशर। जो एयर आप ब्रीद इन करते हो, ब्रीद आउट करते हो, वो
लंग्स के थ्रू जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करी जाती है एयर, वो आपके एयर प्रेशर में डिफरेंट होती है, यानी कि जो एयर आपने ब्रीद इन करी है उसका एयर प्रेशर विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एयर दैट यू हैव ब्रीद आउट। ओके, सो बेसिकली जब आपका एयर प्रेशर फॉल डाउन होता है, सो जो हमारा एल्वेओलर स्पेस है वो भी फॉल होने लगता है एंड एयर आपके लंग्स के अंदर एंटर करती है, जिसको आप इंस्पिरेशन कहते हैं। एंड जैसे ही एल्वेओलर का प्रेशर जो है एक्सीड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, एयर जो है लंग्स के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है, जिसको हम एक्सपिरेशन कहते हैं। ओके, एंड जो फ्लो रेट है एयर का इज इन प्रपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। सो बेसिकली ब्रीदिंग मैकेनिज्म में दो प्रोसेस हैं, दैट इज इंस्पिरेशन एंड नेक्स्ट इज एक्सपिरेशन। ओके, सो इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन प्रोसेस में यहाँ पे क्या आपके मसल्स जो कि रिब्स के साथ अटैच होते हैं ऑन द आउटर साइड, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रिब्स को पुल किया जाता है एंड आपकी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है नीचे की तरफ, यानी कि डाउनवर्ड्स मूव करता है एंड चेस्ट कैविटी को एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। चेस्ट कैविटी के एक्सपेंशन की वजह से एक पार्शियल वैक्यूम प्रोड्यूस होता है जो लंग्स के अंदर एयर को सक करता है एंड आपके एक्सपेंडेड एल्वेओलाई को फिल कर देता है। ठीक है, सो मैकेनिज्म में क्या है? सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक एयर को इनटेक करेंगे, जिसको हम इंस्पिरेशन कहेंगे। ये एक आपका एक्टिव प्रोसेस होता है। जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन टेक्स प्लेस। देन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उससे आपकी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज होता है एंड साइमल्टेनियसली द लंग्स एक्सपेंड। ओके, एंड लंग्स के एक्सपेंशन के साथ एयर प्रेशर जो हमारे लंग्स के अंदर है वो डिक्रीज हो जाता है एंड प्रेशर इक्वलाइज होने से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो क्या आपके लंग्स के अंदर रश करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू एक्सपिरेशन। ओके, अब एक्सपिरेशन प्रोसेस जो है वो आपका क्या, इट इज कंसिडर्ड वंस आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज अकर्स इन द लंग्स। जब एक बार लंग्स में गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, उसके बाद एक्सपिरेशन प्रोसेस होता है। इसमें एयर को हम बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट करते हैं एंड ये जो बाहर की तरफ एक्सपल्जन होता है, इसी को कहा जाता है एक्सपिरेशन। अब इस प्रोसेस में मसल्स जो आपके रिब्स के साथ अटैच्ड है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड डायफ्राम की मसल्स एंड एब्डोमेन की मसल जो है रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी के अंदर वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाता है एंड लंग्स का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर जो एयर है वो बाहर की तरफ पुश की जाती है एंड इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द नोज। नाउ लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेल करने के प्रोसेस को एक्सपिरेशन कहा जाता है, जो कि एक पैसिव प्रोसेस है। ये कब होता है? जब थोरेसिक कैविटी का जो साइज है वो डिक्रीज होता है एंड एयर प्रेशर जो बाहर की तरफ है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स करती हैं एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ पुल करी जाती हैं, थोरेसिक कैविटी का साइज रिड्यूस हो जाता है। डायफ्राम रिलैक्स करता है, लंग्स आपके कंप्रेस्ड हो जाते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली जो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एयर इज फोर्स्ड आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, सो हम बेसिकली एयर को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, लेकिन जो एयर इनहेल एंड एक्सहेल करी जाती है उसका कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है। दैट मीन्स जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, लेकिन जिस ऑक्सीजन को एक्सपेल्ड आउट किया जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है एंड ऑक्सीजन इज लेस। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन इनहेल एयर एंड एक्सहेल एयर, इनहेल एयर में ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन 16.4% है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% भी है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीदिंग रेट। सो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन अगर कॉन्टिन्यूसली एंड ऑल्टरनेटली, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आपका कॉन्टिन्यूसली एंड ऑल्टरनेटली चलता है, एक के बाद एक ब्रीथ में आप एक इनहेलेशन एंड एक एक्सहेलेशन करते हो एंड एक पर्सन 1 मिनट के अंदर कितनी टाइम्स ब्रीथ करता है उसको ब्रीदिंग रेट कहा जाता है। नॉर्मली हम पर मिनट में 16 to 18 टाइम्स ब्रीथ करते हैं एंड ब्रीदिंग रेट आपका 25 टाइम्स पर मिनट तक भी इंक्रीज हो सकता है ड्यूरिंग फास्ट रनिंग एंड हैवी एक्सरसाइज। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स। अब दूसरे एनिमल्स से ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन कैसे चलता है? सो मोड ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वेरीज ग्रेटली फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का जो मोड है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। बेसिक प्रोसेस जो रेस्पिरेशन का है वो सिमिलर होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन वाला बेसिक प्रोसेस है वो सभी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है।
सॉरी सेम है, लेकिन एक्सटर्नल वाला आपका वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो गैसेस के एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो वेरी करता है इन डिफरेंट एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स के पास लंग्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन, फ्रॉग, स्नेक, क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड सभी मैमल्स जो है वो भी क्या उनके पास भी लंग्स होते हैं, लेकिन सभी एनिमल्स के पास लंग्स नहीं होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके अर्थवॉर्म्स, कॉकरोचेस, मॉस्किटो, स्नेल, फिशेस, ये आपके विदाउट लंग्स होते हैं एंड इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं दे आर मच डिफरेंट एज कम्पेयर टू अस। ओके, नाउ दे हैव गिवन यू द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। सो ब्रीदिंग आपका फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन आपका केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग में गैसेस का एक्सचेंज होता है, दैट इज टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है इनसाइड द सेल्स। ब्रीदिंग आपके आउटसाइड द सेल्स होता है एंड रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल्स चलता है। ब्रीदिंग में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज ब्रीदिंग इन कॉकरोचेस। ओके, सो कॉकरोचेस में कैसे ब्रीदिंग प्रोसेस चलता है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो कॉकरोचेस डू नॉट हैव लंग्स, जैसे बाकी मैमल्स के पास लंग्स होते हैं ऐसे कॉकरोचेस के पास लंग्स नहीं होते हैं। ओके, कॉकरोचेस क्या उनके पास एक सिस्टम होता है ट्यूब्स का जो कि उनके स्पाइरेकल्स के साथ अटैच होता है, उसके थ्रू कॉकरोचेस ब्रीथ करते हैं। स्पाइरेकल्स आपके स्मॉल वॉल्स होते हैं अलोंग अ कॉकरोच बॉडी जो कि एयर को अलाउ करते हैं इनटू द ट्रैकिया मच लाइक गिल्स डू फॉर अ फिश। ओके, अब ये जो सिस्टम है ट्यूब्स का इसको हम ट्रैकी कहते हैं, जैसे कि कॉकरोचेस आपके, इसीलिए कॉकरोचेस आपके डिपेंडेंट नहीं होते हैं विंड पाइप के ऊपर या माउथ के ऊपर टू ब्रीथ। अभी जो वॉल्स हैं ये ओपन होती हैं सो दैट ये क्या कर सके, डिस्पेंस कर सके जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल आपका बढ़ जाता है टू अ हाई एनफ लेवल, एंड उसके बाद अलाउ किया जाता है ऑक्सीजन को टू बी लेट इनसाइड द बॉडी। ट्रैकियल सिस्टम उसके बाद ऑक्सीजन को लेकर जाता है डायरेक्टली टू द सेल्स इंस्टेड ऑफ फिल्टरिंग थ्रू लंग्स लाइक एज ह्यूमंस डू। इसीलिए कॉकरोच जो है वो इनफैक्ट क्या करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं अपने हेड के थ्रू भी, एंड ये रेस्पिरेशन जो है इसको हम ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ब्रीदिंग इन अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स से ब्रीदिंग कैसे चलता है, सो दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवॉर्म्स अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, एयर जो है उनके स्किन के म्यूकस पर डिसॉल्व हो जाती है। ओके, इसीलिए उन्हें अपनी बॉडी को मॉइस्ट रखना पड़ता है टू ब्रीथ, एंड अगर वॉर्म्स आपके ड्राई आउट हो जाते हैं तो वो सफोकेट करने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही वो फ्रेश एयर को इनटेक करते हैं अपनी स्किन के थ्रू, ऑक्सीजन जो है वॉर्म्स के सर्कुलेटरी सिस्टम में जाती है एंड वॉर्म्स का जो हार्ट है वो पंप करता है उस ऑक्सीडेटेड ब्लड को टू द हेड एरिया। इस तरीके से एक्सचेंज चलता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन एयर एंड ब्लड इन द स्किन, एंड दिस इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ओके, चलो नेक्स्ट इज ब्रीदिंग इन फ्रॉग्स। फ्रॉग्स में कैसे ब्रीदिंग प्रोसेस चलता है, सो व्हेन द फ्रॉग इज आउट ऑफ द वाटर, फ्रॉग जब आउट ऑफ द वाटर रहता है तब म्यूकस ग्लैंड्स जो उनके स्किन में प्रेजेंट होते हैं वो फ्रॉग्स को मॉइस्ट रखते हैं, जिसके थ्रू वो एयर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। एक फ्रॉग जो है मच लाइक अ ह्यूमन भी ब्रीथ कर सकता है, क्या करके, एयर को इनटेक करके थ्रू देयर नोस्ट्रिल्स एंड डाउन इनटू देयर लंग्स। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग इन फिश। सो गिल्स जो है, गिल्स आपका एक ऑर्गन होते हैं, फेदरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि फुल ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं एंड फिशेस में प्रेजेंट होते हैं। एक फिश जो है वो वाटर को ब्रीद इन करती है अपने माउथ के अंदर, ये बोलो टेक इन करती है अपने माउथ के अंदर, एंड उसके थ्रू क्या ब्रीदिंग प्रोसेस चलता है फिशेस के अंदर। तो फिश कैसे ब्रीथ करेगी, पहले वाटर को अपने माउथ में इनटेक करेगी एंड उसको फोर्स करेगी आउट थ्रू द गिल पैसेजेस। जैसे ही वाटर जो है गिल्स के थिन वॉल्स से पास होगा, जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व है वो ब्लड की तरफ मूव करेगी एंड इट विल ट्रैवल टू द फिश सेल। ओके, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स। अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे चलता है, सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में काफी लिटिल अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस विद इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बहुत ही कम गैसेस एक्सचेंज चलता है आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन द प्लांट्स, इसीलिए हर एक पार्ट जो है वो अपने खुद के एनर्जी रिक्वायरमेंट का खुद केयर करता है इन द प्लांट्स। ओके, चलो, सो रूट, स्टेम, लीव्स, जो भी ये पार्ट हैं प्लांट्स के, ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस को फॉर रेस्पिरेशन सेपरेटली। जैसे कि हम सबको पता है लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, इनको यूज किया जाता है बाय द प्लांट्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एंड जो ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू टेक इन की जाती है उसको प्लांट्स के सेल्स यूज करते हैं लीव्स के अंदर, सो दैट वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सके इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट वी कम टू डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन,
So diffusion is the process by which food molecules, oxygen, water and the other materials enter and leave the cell through opening in the cell membrane. Okay, so diffusion एक ऐसा process है जिसके थ्रू food molecules, water, oxygen and जितने भी बाकी materials हैं वो सेल के थ्रू एंटर करते हैं या सेल से बाहर निकलते हैं सेल मेम्ब्रेन की ओपनिंग्स के थ्रू, जिन्हें कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन. आपने इस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन को ऑब्जर्व किया होगा अपने खुद के लिए भी. आप क्या करो, कुछ इंक को ड्रॉप करनी है आपको एक ग्लास ऑफ वाटर में एंड देन यू सी व्हाट हैपेंस. ये जो इंक ड्रॉप्स थी वो आपके थ्रू आउट द वाटर स्प्रेड हो जाएंगी एंड जैसे जैसे स्प्रेड होंगी जो इंक का कलर है वो लाइटर होता चला जाएगा बिकॉज इंक के मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द लिक्विड मूव करते हैं. ओके, सो डिफ्यूजन अलोन, डिफ्यूजन अकेले क्या कर सकता है, प्लांट्स के जितने भी सेल्स हैं उनको एज मच एज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उनको क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए. डिफ्यूजन आपके रूट, स्टेम एंड जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं सभी पार्ट्स में अकर करता है. नेक्स्ट इज डिफ्यूजन इन रूट्स. रूट्स में डिफ्यूजन कैसे होता है? सो रूट्स जो कि प्लांट्स का अंडरग्राउंड पार्ट होती हैं वो क्या करती हैं, एयर को एब्जॉर्ब करती हैं उन एयर स्पेसेस में से जो कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं. इस तरीके से जो ऑक्सीजन रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है उसको यूज करते हैं प्लांट्स एनर्जी रिलीज करने के लिए, जिसको बाद में यूटिलाइज किया जाता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल. यू ऑफन हियर दैट, आपने ऑफनली ये सुना होगा कि लोगों को पूछा जाता है नॉट टू स्लीप अंडर ट्री एट नाइट. रात के टाइम पे पेड़ों के नीचे सोना नहीं चाहिए. कहा जाता है ना, ऐसा क्यों? बिकॉज रात के टाइम पे उस पर्सन को सफोकेशन फील हो सकता है क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट होती है विच इज रिलीज बाय द ट्रीज. रात के टाइम पे ट्रीज भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से प्लांट्स के अराउंड ज्यादा प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम. ओके, नेक्स्ट इज डिफ्यूजन इन स्टेम. सो स्टेम के केस में एयर जो है वो स्टोमेटा में डिफ्यूज हो जाती है एंड देन उसके बाद सेल के वेरियस पार्ट्स के थ्रू पास करती है फॉर रेस्पिरेशन. एंड उसके बाद इस स्टेज के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है वो भी हमारे स्टोमेटा में डिफ्यूज हो जाती है. एंड जो हायर प्लांट्स या वुडी प्लांट्स होता है उसमें गैसेस एक्सचेंज जो है वो लेंटिसेस के थ्रू कैरी आउट किया जाता है. नेक्स्ट इज डिफ्यूजन इन लीव्स. तो लीव्स में टिनी पोर्स होते हैं जिनको आप स्टोमेटा कहते हैं एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कि स्टोमेटा के थ्रू होता है वो आपके डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही होता है. हर एक स्टोमा को कंट्रोल किया जाता है बाय द गार्ड सेल, यानी कि स्टोमा इज अ सिंगुलर नाउन फॉर स्टोमेटा, ठीक है. तो जो ओपनिंग है क्लोजिंग है स्टोमेटा की वो हेल्प करती है इन द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द इंटीरियर ऑफ लीव्स, ठीक है. एयर एटमॉस्फेयर एंड जो लीव्स के इंटीरियर पार्ट है उसमें गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो इन्हीं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के थ्रू होता है जिसको गार्ड किया जाता है बाय द गार्ड सेल्स. Okay, so the chapter is completed. I hope you all must have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.